A very good morning to all of you. My dear student, as you know that at present general chapter is going on. And my dear student, if you want to do this chapter, then again I am saying that the golden rules should be learned. And again golden rules I am giving to you every day. Because these rule is very important and these are the 8 rules of the debit and credit and it should be learned. Number one is a personal account, debit receiver, and credit is a giver. Real account related to the assets. And these accounts says debit what comes in, credit what goes out. Nominal account says debit all expenses losses and credit all incomes, profit and gain. And the modern approach says that assets debit and liabilities credit. These are the 8 rules of debit or credit. अगर आपको ये रूल्स लर्न है देन अकाउंटेंसी विल बी सिंपल. Yes, now dear student, today we will solve a journal entry question, but there is no journal entry. There is a full explanation of the journal entry. These are the transaction is written here also. Dinesh started business, you can see here. Dinesh started business with cash rupees 5 lakh. Here is also transaction, same transaction. Dinesh started business with cash rupees 5,000. So there are the 10 transaction, 10 total 10 transaction is here also. Now we will read from here. Dinesh started business with cash rupees 5 lakh. Dinesh is the owner of a business and Dinesh बिजनेस को स्टार्ट कर रहा है. अगर दिनेश 5 लाख रुपीस लगा के बिजनेस को स्टार्ट करेगा तो कौन कौन से अकाउंट इफेक्ट पड़ेंगे चेक करते हैं. अकाउंट इन्वॉल्व डेफिनेटली इफ अ ऑनर विल इन्वेस्ट द कैश इनटू द बिजनेस देन कैश कम्स इन द बिजनेस. तो फर्स्ट अकाउंट इन्वॉल्व कैश और जिस पैसे को लगा के बिजनेस स्टार्ट किया जाता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल एंड सेकंड अकाउंट इज अ कैपिटल. तो दीज टू अकाउंट विल बी इफेक्ट बिकॉज माय डियर स्टूडेंट at present we are doing the accountancy with the double entry system. चाहे आप 11th करें 12th करें CA करें अकाउंटेंसी डबल एंट्री सिस्टम से करते हैं जिसमें डेबिट एंड क्रेडिट दो चीज़ें होती हैं और उन्हें ही हम सीख रहे हैं बिकॉज वी नो वेरी वेल अबाउट इट. अगर बिजनेस के अंदर कोई भी डीलिंग या ट्रांजेक्शन होती है तो उसके इफेक्ट दो जगह पड़ते हैं. उन दो जगह को हमें सीखना ज़रूरी है. जैसे यहाँ पर ये कहा है कि दिनेश स्टार्टेड बिजनेस विद कैश. अगर दिनेश ने बिज़नेस स्टार्ट करा है तो बिज़नेस के पास पैसा आएगा और पैसा आएगा किस वजह से, कैपिटल की वजह से. तो देयर आर टू अकाउंट्स इन्वॉल्व, कैश एंड कैपिटल. चेक कैश. कैश इज़ अ रियल अकाउंट. नेचर ऑफ अकाउंट कैश इज़ अ रियल बिकॉज कैश इज़ अ एसेट एंड रियल अकाउंट रिलेटेड टू द एसेट्स ऑलरेडी वी हैव टोल्ड यू. तो कैश इज़ अ रियल और रियल अकाउंट का रूल है व्हाट कम्स इन व्हाट गोज आउट. At present cash comes into the business. So now we can see cash is coming in. This is a fact. और cash comes होगा what comes in debit होते हैं. My dear student, debit amount is of 5 lakh rupees. Now we can check other. Second account is a capital account. The capital is related. Nature of account is a personal. Nature of account is a personal because a owner is invested the amount into the business, so definitely it is a personal account. And Dinesh is a giver. Now we can check giver is credit. Now we can check there is a 5 lakh rupees in the credit side. But my dear student, in the modern approach capital is a liability and liability is credit. So that's why इस वजह से भी ये क्रेडिट में जाएगा बिकॉज कैपिटल इज अ लायबिलिटी और लायबिलिटी इज क्रेडिट. तो दैट्स वाई कैपिटल अमाउंट विल गो इन द क्रेडिट साइड 5 lakh rupees. Yesterday I have explained the entry also cash account debit to capital account, but there is no journal entry. But dear student, this is the homework. This is a homework assignment that you have to prepare the journal entries of this question because there is a full explanation, but you have to prepare the journal entry of this question. This is a home assignment to you. Now we will come on the second dealing. Second dealing is borrowed from Naresh rupees 1 lakh. borrowed from नरेश, हमने नरेश से उधार पैसा लिया 1 लाख रुपए.
अगर 1 लाख रुपीज़ हम बोरोड करेंगे नरेश से, तो डेफिनेटली व्हाट कम्स इन टू द बिजनेस, कैश कम्स इन। फर्स्ट अकाउंट इन्वॉल्व कैश, एंड सेकेंड हम बोरोड कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, इसका मतलब दिस लाइबिलिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट इन फ्यूचर वी विल पे। तो वन लाइबिलिटी इज क्रिएटिंग इन टू द बिजनेस। नाउ वी कैन चेक, फर्स्ट इज अ कैश इन्वॉल्व, सेकेंड इज अ लोन फ्रॉम नरेश, loan from Naresh is a liability, this is also involved. Now we can check, cash is a real and loan from Naresh is a personal from the traditional approach. But modern approach के अकॉर्डिंग देखा जाए तो loan is my liability, liability क्रेडिट होती है, और अगर पर्सनल के अकॉर्डिंग देखा जाए तो नरेश से हम लोन ले रहे हैं तो नरेश इज़ अ गिवर, तो भी क्रेडिट होना चाहिए। तो यहाँ हम चेक करेंगे, कैश इज़ रियल, रियल के रूल हैं कैश कम्स इन, तो कैश कम्स इन, तो कैश शुड बी डेबिट 1 लाख रुपीज़। नरेश से हमने लोन लिया है पर्सनल, नरेश इज़ अ गिवर, नाउ गिवर इज़ अ क्रेडिट, 1 लाख रुपीज़ इज़ अ क्रेडिट। बट डियर स्टूडेंट, नरेश का नाम नहीं आएगा, जनरल एंट्री विल मेक कैश अकाउंट डेबिट एंड टू लोन अकाउंट, बिकॉज लोन इज़ अ लाइबिलिटी एंड लाइबिलिटी शुड बी क्रेडिट, दैट्स वाई लोन शुड बी क्रेडिट and cash comes into the business, that's why cash should be debit. Now we will come on the third entry, purchase furniture for rupees 20,000 in cash. Purchase furniture for rupees 20,000 in cash, it means in the business furniture is coming. अगर हमने फर्नीचर खरीदा, नगद खरीदा इन कैश, तो डेफिनेटली फर्नीचर इज कमिंग and cash goes out from the business. These two account will be fact. Now we can check furniture and cash. Furniture real and cash be real, because furniture and cash both are the assets. Real account furniture comes in and cash goes out. तो जो हमारे पास आ रहा है फर्नीचर कम्स इन, तो डेबिट होना चाहिए, फर्नीचर शुड बी डेबिट। तो इन द डेबिट साइड 2 लाख रुपीज़ फर्नीचर के, और क्रेडिट साइड कैश के लिए 2 लाख रुपीज़। Entry should be furniture account debit and to cash account, ये बननी चाहिए एंट्री। There is no journal entry student, this is a home assignment that you have to prepare the journal entries. Now we will come on the fourth, purchase furniture from Delhi Save. Purchase furniture from Delhi Save for rupees 40,000, 40,000 रुपये का हमने फर्नीचर ख़रीदा है, और अब क्या बताया गया है फ्रॉम डेली सेव, डेली सेव से फर्नीचर ख़रीदा गया है। यहाँ पर एक नाम दिया है, या किसी पर्सन का नाम भी हो सकता है, किसी शॉप का नाम भी हो सकता है, जैसे डेली सेव इज़ अ शॉप नेम। लेकिन यहाँ पर एक बात क्लियर है कि अगर यहाँ नाम दिया है, हमने कुछ ख़रीदा है और नाम बताया हमने किससे ख़रीदा है, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं डीलिंग उधार हो रही है, दिस अ क्रेडिट डीलिंग, एंड दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम। डेली सेव इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट नेम फॉर अस एंड वी हैव टू लर्न दिस नेम। इसको हमें याद रखना पड़ेगा। इसके लिए अगर हमें याद रखना पड़ेगा तो हमें पता चल गया है दिस अ क्रेडिट डीलिंग, और अब या तो ये रिसीवर है या गिवर है, वी विल चेक। परचेज फर्नीचर, हमने फर्नीचर खरीदा है फ्रॉम डेली सेव। नाउ स्टूडेंट, फर्नीचर एंड डेली सेव, दीज टू अकाउंट्स विल इफेक्ट। फर्नीचर इज अ रियल अकाउंट एंड फर्नीचर इज कमिंग, तो फर्नीचर इज कमिंग, तो फर्नीचर शुड बी डेबिट, एंड डेली सेव पर्सनल, एंड डेली सेव इज अ गिवर। डेली सेफ इज़ अ गिवर, बिकॉज डेली सेफ से हम खरीद रहे हैं तो वो सामने वाला बंदा गिवर है, और गिवर शुड बी क्रेडिट। तो यहाँ पर 40,000 रुपीज़ क्रेडिट साइड में आना चाहिए, 40,000 रुपीज़ डेबिट साइड में फर्नीचर के आने चाहिए, बिकॉज फर्नीचर कम्स इन एंड डेली सेफ इज़ अ गिवर, तो डेली सेफ शुड बी क्रेडिट। नाउ वी विल कम ऑन द फिफ्थ ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर कैश रुपीज़ 15,000। परचेज गुड्स फॉर कैश, इसका मतलब हमने नगद सामान खरीदा है। अगर हमने सामान खरीदा गुड्स, माय डियर स्टूडेंट, वी विल नॉट राइट द गुड्स इन द डीलिंग इन द जर्नल एंट्रीज। एट प्रेजेंट वी आर परचेजिंग गुड्स, तो वी विल यूज द वर्ड परचेज। व्हाट कम्स इन, परचेज कम्स इन, एंड व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट। सामान खरीदेंगे तो परचेज आएगी और कैश जाएगा, तो वन अकाउंट विल बी फैक्ट इन द फिफ्थ डीलिंग, परचेज एंड कैश। यहाँ पर हम कहते हैं परचेज इज़ अ नॉमिनल अकाउंट, बिकॉज अगर आप परचेज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली दिस आर एक्सपेंसेस, बिकॉज यहाँ पर जो सामान ख़रीदा जा रहा है वो आप उसे यूज़ करेंगे, कंज्यूम करेंगे, तो परचेज नॉमिनल अकाउंट। तो यू कैन चेक फ्रॉम हियर दैट गुड्स कम्स इन
and personal account. Now dear student, we will come on the fifth point. Fifth point says that purchase goods for cash. नगद सामान हमने खरीदा, परचेज गुड्स फॉर कैश. डेफिनेटली अकाउंट अफेक्टेड. अगर परचेज गुड्स फॉर कैश तो व्हाट कम्स इन, परचेज कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस. तो जो बिज़नेस हमारा उसे डेबिट करेंगे, जो बिज़नेस से जा रहा है उसे क्रेडिट करेंगे. तो यहाँ पर अकाउंट अफेक्टेड परचेज और कैश है. परचेज विल कम, परचेज अकाउंट डेबिट एंड टू कैश अकाउंट. ये आपकी एंट्री बननी चाहिए. नाउ वी विल कम ऑन द सिक्स पॉइंट. सिक्स पॉइंट सेज परचेज गुड्स फ्रॉम महेश. माई डियर स्टूडेंट, देयर इज़ अ नेम, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश. महेश से सामान खरीदा है. अगर यहाँ नाम इन्होंने बताया है, दे हैव गिवन द नेम, दैन दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी हैव टू रिमेंबर दिस नेम. तो इट्स मीन हमने क्रेडिट डीलिंग करी है, उधार डीलिंग करी है. नाम से हमें पता चल गया है कि दिस इज़ अ क्रेडिट डीलिंग और इस नाम को हमें याद रखना पड़ेगा. परचेज गुड्स फ्रॉम महेश. महेश से ख़रीदा. किसने ख़रीदा? हमारे बिजनेस ने. तो व्हाट कम्स इन, हमारे बिजनेस पे क्या आया? डेफिनेटली परचेज कम्स इन. एंड व्हाट गोज आउट, माय डियर स्टूडेंट, माइंड में तुरंत आएगा सो परचेज कम्स इन एंड कैश गोज आउट. नो, बिकॉज परचेज गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट बेसिस. क्योंकि नाम आ रहा है इसलिए हमने उधार खरीदा, क्रेडिट खरीदा है. तो डेफिनेटली हम इसके नाम को याद रखना ज़रूरी है. इफ़ वी विल परचेज गुड्स फ्रॉम महेश, then Mahesh will be giver and giver should be credit. Then account affected purchase and Mahesh, entry should be purchase account debit and to Mahesh account, amount 30,000. Now dear student, we will come on the seventh point. Seventh point is a sold goods for cash. Sold goods for cash to Kareem, रुपीज़ 25,000. माई डियर स्टूडेंट, देयर इज़ अ नेम. यहाँ पर एक नाम है, बट क्लियर दे आर सेइंग दैट सोल्ड गुड्स फॉर कैश. हमने सामान बेचा है फॉर कैश, नगद बेचा है टू करीम, करीम को बेचा है. बट करीम का नाम याद रखना ज़रूरी नहीं है बिकॉज हमारी डीलिंग उधार नहीं है. दिस इज़ नॉट द क्रेडिट डीलिंग, दिस आर कैश डीलिंग. बिकॉज क्लियरली दे आर राइटिंग दैट सोल्ड गुड्स फॉर कैश. So if we will sell goods for cash, that definitely what comes in the business, cash comes in, and what goes out, sales goes out. ये two account will be affected. तो जो आ रहा है डेबिट कर दीजिए, what comes in debit and what goes out credit. तो cash comes in, cash account debit, and to sales account this entry should be prepared. Now we will come on the eighth point. Eighth point is saying sold goods to Sham. सोल्ड गुड्स टू शाम. शाम को बेचा. यहाँ पर क्लियरली ये नाम आया है, उधार मान सकते हैं, बिल्कुल उधार बेचा होगा. लिंक क्लियरली दे आर राइटिंग ऑन क्रेडिट. अब तो क्लियर बता दिया उन्होंने, ऑन क्रेडिट. क्रेडिट का उधार. सोल्ड गुड्स टू शाम ऑन क्रेडिट, उधार बेचा है. अगर नाम नहीं भी बताते तो नाम आया था तो हम तब भी उधार मान लेते. बट एट परसेंट हमें मानने की ज़रूरत नहीं. इट विल नॉट बी अज्यूम्ड. क्लियरली दे आर रिटन दैट sold goods to Sham on credit. So definitely we have to remember the name of Sham. If we will sold goods, what comes in? Definitely not cash comes in because हमने उधार बेचा है. तो शाम, किसको बेचा हमने? शाम को. अगर हम शाम को बेचेंगे तो डेफिनेटली शाम will be the receiver and receiver should be debit. This is a rule of debit credit. तो शाम should be debit and what goes out? Sales goes out. तो two account effect is a Sham account and sales account. Sham is a receiver, it should be debit, and sales goes out from the business, it should be credit. Entry बननी चाहिए Sham's account debit and to sales account. Now we will come on the ninth entry, ninth dealing. Cash received from Sham, rupees 20,000. Cash received from Sham, Sham से पैसा मिला है. तो what comes in the business? Definitely cash comes in. और हुज अ गिवर. गिवर कौन पैसा दे रहा है? शाम इज़ अ गिवर. शाम की वजह से पैसा आ रहा है. शाम इज़ अ गिवर. तो व्हाट कम्स इन कैश शुड बी डेबिट बिकॉज व्हाट कम्स इन डेबिट एंड शाम इज़ अ गिवर. तो शाम शुड बी क्रेडिट बिकॉज गिवर क्रेडिट होते हैं. तो यहाँ पर हमारे अच्छी तरह वी नो वेरी वेल अबाउट इट द रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट एंड गिवर इज़ अ शाम एंड शाम शुड बी क्रेडिट. तो एंट्री शुड बी प्रिपेयर दैट कैश अकाउंट डेबिट एंड टू शाम्स अकाउंट
amount 20,000 rupees. Now we will come on the 10th point, that cash paid to Mahesh rupees 10,000. कैश पेड टू महेश, वी आर पेइंग टू कैश टू महेश, महेश को हमने पैसा दिया है, तो ही इज़ अ रिसीवर, रिसीवर इज़ अ महेश, और रिसीवर शुड बी डेबिट, तो महेश शुड बी डेबिट. एंड व्हाट गोज आउट, कैश गोज आउट, पैसा जा रहा है बिजनेस से, तो जो जा रहा है उसे क्रेडिट होना चाहिए, बिकॉज व्हाट गोज आउट शुड बी क्रेडिट. तो टू अकाउंट विल बी इफेक्ट महेश, महेश इज़ अ रिसीवर, एंड कैश, कैश गोज आउट, journal entry should be prepared that Mahesh account debit, Mahesh is a receiver, that's why it is debit. And to cash account, cash goes out from the business, amount should be 10,000 rupees. My dear student, I hope you understood all points. And dear student, this is a home assignment that you have to prepare the journal entries of these dealings and transactions, because this is a the long explanation, but there is not a journal entry, but this is a home assignment to you that you have to prepare the journal entry of it. Thank you very much. I hope you understood. God bless you.